Good morning, guys. I'm Deepak Sir, and welcome to my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. I'm back again here with a very important topic, and that is the numericals of Raoult's law for liquid in liquid solution. Okay, I shall be solving each solved in text question and the textual exercise questions. Remember, guys, this topic is very important from board point of view, and of course for NEET the NEET exam point of view also, numericals, lots of numericals have been asked from this area, so focus it properly. Here we go. Okay, guys, so before we start up the numericals based on Raoult's law for liquid solution, let us revise its theory. Okay, in short, so this is pure liquid A, this is pure liquid B, and P naught A is the vapor pressure of pure liquid A, and P naught B is the VP of pure liquid B. और यहाँ पर P है, that is P total, जब E और B mix होते हैं. Now remember the condition: liquids must be volatile and they must be miscible with each other. So Francois Martin Raoult in 1886, what he stated that the vapor pressure of any volatile component is directly proportional to its mole fraction. Okay, इसका मतलब PA, अब PA क्या है? मिक्सचर में A का प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर. So partial pressure of A will be proportional to its mole fraction chi of A, and therefore we have P of A is equal to P naught A chi A. यहाँ P naught A क्या है? लिक्विड A का, प्योर लिक्विड A का VP. ओके, इसका मतलब जब chi A 1 होगा ना, तब P naught A will be equal to P of A. Remember, the same way we can say that P of B is equal to P naught B chi B. Okay, and we have P is equal to P of A plus P of B, and so we can write P is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. Now chi A can be written as 1 minus chi B, okay, because chi A plus chi B is 1. In the same way chi B की जगह पे हम 1 minus chi A भी लिख सकते थे. So we can obtain this equation in this form: P is equal to P naught A plus P naught B minus P naught A chi B. अब P naught A और B तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो दिस इज ऑफ दिस फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप ग्राफ. ओके, मतलब इट विल हैव एन इंटरसेप्ट P naught B minus P naught A, and slope will be P naught A if we plot total pressure against the mole fraction of B. In the same way, we can show that P can be shown in terms of the mole fraction of A. Okay, so in this case, this will be the slope and this will be the intercept. That means total pressure varies linearly, okay, with the mole fraction of each of the component. So we have seen this, friends. Okay guys, now this is the graph of such kind of equation, okay, for the two liquids. This is Ka, that is Xa, okay, this is Xa, that is equal to 1, means mole fraction of A is 1 here, मतलब mole fraction B कितना होगा? 0. And as we move across this line, mole fraction of A will be 0 and mole fraction of B will be 1. This is a graph of vapor pressure versus mole fraction. Okay, now जब chi A 1 होगा, okay, इसका मतलब साफ है कि तब जो भी प्रेशर होगा वो P naught E होगा. okay, और जब chi B 1 होगा तब जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा? P naught B, and this line indicates the total pressure, okay, curve. And this one, कि chi A 0 है, तो this is the line, beginning line. So as mole fraction of A increases along this, its VP also increases, and this is the graph for PB. Remember, okay. Let YA be the mole fraction of A in the vapor phase. अब देखो, XA और XB और chi A chi B हम जो बोलते हैं, let it be X and XB,
वो हमने क्या बात किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर फॉर्म, दैट इज इन द लिक्विड फेज। लेकिन यही जब बनेगा वेपर, तो वेपर में भी तो कुछ होगा उनका कंपोजिशन। तो लेट वाई ए बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज एंड वाई बी be the mole fraction of B in the vapor phase, and hence we have the equation P of A will be equal to YA, that is mole fraction into P total, and PB will be equal to YB into P total, and so we can write YA equal to P upon P total. And we have seen earlier PA क्या होता है, P naught A का I है, और P क्या होता है, P naught A का I plus P naught B का IB. In the same way we can show this for this. Okay, so दोस्तों इतने इतने फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आते हैं on Ross law for the liquid in liquid solution. Okay, and now we shall be doing the numerical. Okay guys, so this is the first numerical और ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म लिक्विड ए, हम इसको ए मान लेते हैं। देखो हमने क्या माना है, ए इज क्लोरोफॉर्म राइट, एंड डाइक्लोरोमीथेन ये दूसरा लिक्विड है, उसको हमने बी माना। एट दिस टेम्परेचर आर दिस मच mm एंड दिस मच mm, दैट मीन्स यू शुड नो कि ये जो दिए हैं प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी है, बिकॉज प्योर ए और प्योर बी का प्रेशर है। सो ये क्या हो गया, पी नॉट ए पी नॉट बी। हमेशा न्यूमेरिकल रीड करते करते ही आपको आइडिया आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड व्हाट आर द टर्म्स गिवन। ए पी नॉट ए हो गया, पी नॉट बी, और हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। कैलकुलेट हमें क्या करना है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला वीपी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हम पी ढूंढना है बाय मिक्सिंग दिस मच ग्राम्स ऑफ दिस एंड दिस मच ग्राम्स ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ऑफकोर्स जब मास दिया है, मोलर मास तो हम ढूंढ सकते हैं फॉर्मूला पे से, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे, Na और Nb मिल जाएगा हमको मास से। ओके, और दूसरा हमें पार्ट क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन द वेपर फेस, मतलब YA और YB। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, but simple it is bit lengthy to calculate. Okay, तो just focus here first this side. हमने A को माना क्लोरोफॉर्म, B को माना है डाइक्लोरोमीथेन। तो हमने क्या ढूंढा पहले, मोल ऑफ ए, मास ऑफ ए अपन मोलर मास। मास ऑफ ए कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25.5, और क्लोरोफॉर्म 119.5 इज़ द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, और ये मोल आया इतना। इन द सेम वे मोल्स ऑफ बी होगा मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। उसका मास बी का दिया है 40 ग्राम्स क्वेश्चन में, और 85 उसका मोलर मास। सो दिस इज 0.47। ओके, नाउ एन और एन बी मिल गया, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट काई ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए इज दिस मच 0.213, और नीचे इनका समेशन हमें मिला 0.312। आई होप यू गॉट दिस। काई बी ढूंढना आसान है, 1 में से आप माइनस कर दो काई ए को, बिकॉज काई ए प्लस काई बी 1 होता है। ओके, और लेंदी ढंग से करना है तो इसी फॉर्मूला में आप ऊपर एन बी लिखते, दैट्स इट। सो 1 माइनस काई ए किया मैंने, 0.688 आया। नाउ पी टोटल ढूंढने के लिए हमें पी ए और पी बी चाहिए, तो पी ए क्या होगा, पी नॉट ए का ये, वी हैव सीन इन द फॉर्मूला। तो पी नॉट ए तो कितना है, प्योर ए का वीपी जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 200 mm। ओके, एंड 0.312 हमने ढूंढा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, इतना mm हमको प्रेशर आया। ओके, दिस इज इन mm, रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। In the same way we got P of B, that is P naught B chi B. So 414 B का प्योर प्रेशर है, हमें प्योर A B का VP है, और chi B हमने ढूंढा था, that is 0.688. We got this 285.5. Now simple we have to add the two, टोटल प्रेशर कैसे मिलता है, तो P is equal to what,
P of A प्लस P of B. P of A हमने ढूंढा था 62.4 and PB इतना आया था. So this is the answer. So friends, we got P total. Now Y of A, that is the second part of the question. Mole fraction of A in the vapor phase. P of A upon P total. P of A हमने कहाँ ढूंढा था? हमने साइड में, that is 62.4 and this is P total. So it is 0.18. Y भी ढूंढना है तो आप YA को 1 से माइनस कर दोगे तो भी ये आएगा, या तो PB अपॉन P टोटल करोगे, इतना आएगा. Friends, I hope you got the solution for this question. Okay, so the question is very simple. इस बिट लेंदी टू कैलकुलेट, लेकिन याद रखना ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ओके दोस्तों, सो दिस इज न्यूमेरिकल 2 और ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.8 है. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, मतलब हमें P0 A और P0 B दिया हुआ है 450 एंड 700 mm ऑफ Hg. ओके, एट दिस टेम्परेचर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर. लिक्विड मिक्सचर मतलब कंपोजिशन, अगर उसके अंदर हम कोई पूछता है तो हमें काई A और काई B, दैट इज XA एंड XB ढूंढना होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन A और B का लिक्विड फेज में. ओके, इफ द टोटल प्रेशर इज दिस मच, ये हमें P टोटल दिया हुआ है. एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, मतलब YA और YB भी हमें ढूंढना है. सो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेस्ट का, आपको आना चाहिए. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम में. सिमिलर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग. सो हमें दिया हुआ है P total this which is 600 mm. P0 A is 450 mm. P0 B is 700. एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, लेट मी डिस्कस, बिकॉज ये शायद दूसरा भी कोई सोच सकता है कि सर P टोटल कम है, PB 700 है, ये ज़्यादा है, और हम A और B को मिला के बनाते हैं मिक्सचर. तो मिक्सचर का प्रेशर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के मिक्सचर के प्रेशर से, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर से कम कैसे हो सकता है? सिंपल आपको ये सोचना चाहिए कि हमने जो ये लिखा है फॉर्मूला, P क्या होता है? P0 A काई A. ओके, मतलब A का जो भी प्योर प्रेशर है, जैसे 450 दिया हुआ है, उसका एक कंपोनेंट, एक फ्रैक्शन लेंगे. ओके, वैसे B का हम भले बोलते 700 प्योर B का प्रेशर है, बट मिक्सचर में मान लो इसका हम एक पार्ट लेते हैं, वो तो कम हो जाएगा ना. सो प्लीज़ यू डोंट सी कि P0 A P0 B बड़ा है P टोटल से. नो वे. इनका कोई फ्रैक्शन अगर हम लेंगे तो इसका कितना फ्रैक्शन और इसका कितना फ्रैक्शन. ओके, सो दैट वी गेट टोटल दिस मच प्रेशर. ओके, हो सकता है कि यहाँ से 200 आए तो यहाँ से कितना आएगा? 400 प्रेशर आएगा. यहाँ से 300 आए तो यहाँ से भी 300 आएगा. यहाँ से 450 प्रेशर आएगा तो यहाँ से सिंपल है 600 करने के लिए कितना चाहिए? और 150 चाहिए. सो दैट इज़ द वे माय डियर फ्रेंड. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज विद द फिगर्स, जस्ट फॉलो द फॉर्मूलाज. सो P इज इक्वल टू वॉट? P0 A काई A एंड P0 B काई. वी हैव सीन. ओके, नाउ सिंपली है कि काई B को हमने काई A के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एंड वी हैव गॉट दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में तुम्हें पता है वी नो P टोटल जो 600 दिया हुआ है, वी नो P0 A जो 450 है, P0 B जो 700 है. काई A हमें ढूंढना है, सिंपल हमें मिल जाएगा. सो हियर वी हैव द इक्वेशन एंड द वैल्यूज. ओके, सो 600 इज इक्वल टू वॉट? -250 इंटू काई A प्लस 700. इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा तो बचेगा 100, बिकॉज 700 माइनस 600 इज 100, और ये यहाँ पर आएगा तो प्लस बनेगा. दैट इज पॉजिटिव फिगर. सो काई A विल बी 0.4. इन द सेम वे विल गेट काई B 1 माइनस काई A 0.6. I hope you got how we just got chi A and chi B. So P total equal to P0 A chi A, P0 B chi B.
हमको काय बी या काय ए दोनों को एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। मैंने काय बी को काय ए के टर्म में कन्वर्ट किया। काय बी क्या होगा 1 माइनस काय ए। सो आई गॉट दिस इक्वेशन एंड आई नो ऑल दीज आर गिवन, सो दिस इज माई आंसर। नाउ लेट अस discuss the second part, that is find the composition in vapor phase। YA क्या होता है? P of A upon P total। हमें P total 600 दिया हुआ है और PA क्या होगा? P नॉट A का IA। P नॉट A भी हमको दिया हुआ है 450, हमने देखा पहले क्वेश्चन में। सो 450 इंटू 0.4 का ये हमने ढूंढ लिया यहाँ पर अपॉन 600, वी गॉट 0.3। सो वाई भी क्या होगा? 1 से माइनस करेंगे 0.7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट कि दिस क्वेश्चन हैज़ 2 simple parts। Okay, we have to find mole fraction in the liquid phase, that is XA XB, और दूसरा YA YB vapor phase में। So this is the way we can solve। Okay guys, so this is example numerical number 3 और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.16 है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ द 2 लिक्विड्स, मतलब हमें P नॉट A और P नॉट B। A हम मान लेते हैं हेप्टेन को और B ऑक्टेन को। ओके, तो हमें P नॉट A कितना दिया है? 105.2। P नॉट B इज़ 46.8। What will be the VP of the mixture? मतलब हमें P ढूंढना है। What will be the VP of the mixture of 26 grams? ये मास दिया हेप्टेन का और इतना ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। तो हमने A को क्या माना है? हेप्टेन। लेट अस सी हाउ वी सॉल्व दिस थिंग। A को हमने माना है हेप्टेन, B को ऑक्टेन। सो मोल्स ऑफ A मिल जाएगा हमको, मास ऑफ A अपन मोलर मास। अब हेप्टेन का हमें फॉर्मूला पता ही है, C7H16। ओके, और ऑक्टेन का C8H18। सो मोलर मास दोनों का पता हमें 100 और 114। ओके, सो वी गेट द मास अपन मोलर मास इतना और इतना, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी। फिर मोल फ्रैक्शन। ओके, कई लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा हुआ एग्ज़ाम में। कई लोग ये जो फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ हमें मोल जो हमने ढूंढा है वो लगाना है। कई लोग सीधा इसमें जो मास दिया हुआ है सीधा मास यहाँ लगा देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। काय ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। जो हमने फाइंड किया वो रखा वैल्यू, हमें 0.456 आया और 1 से माइनस कर दिया तो हमें मिल गया काय ऑफ बी। नाउ लेट अस फाइंड आउट टोटल प्रेशर। हाउ? सो टोटल प्रेशर के लिए हमें पी ए और पी बी चाहिए, बिकॉज पी इज इक्वल टू व्हाट? पी ए प्लस पी बी। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हमको, दिस मच एंड दिस मच इज गिवन। पी ए क्या होगा? पी नॉट ए का ये। सो पी नॉट ए हमें पता है, का ये हमने यहाँ पे ढूंढा है, मल्टीप्लाई किया, वी गॉट इन किलो पास्कल। दूसरी गलती ये लोग करते हैं, लोगों को सिर्फ बार पता है प्रेशर का यूनिट, बार या ATM। दे ट्राई टू कन्वर्ट दिस थिंग। प्लीज़ डोंट कन्वर्ट, जिसमें है उसमें रहने दीजिए इसके अंदर। ओके, सो किलो पास्कल इतना आया। एंड वैसे ही पी बी कितना आएगा? पी नॉट बी काय बी, दैट इज़ 46.8 इंटू 0.544। वी गॉट दिस मच। और पी टोटल कैसे आया? पी ए और पी बी को हमने ऐड कर दिया। सो यहाँ पर आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन गाइस। बहुत सिंपल है, हमने मास से दोनों का मोल ढूंढा। एक को हमने ए माना, एक को बी माना। मोल के लिए हमें पता है मोलर मास चाहिए, मोलर मास हमें आना चाहिए कंपाउंड देख करके। फिर वी फाउंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड देन 1 से माइनस किया तो बी का मोल फ्रैक्शन। पी नॉट ए पी नॉट बी हमको दिया हुआ है, हमें पी ए मिल जाएगा कैसे? पी नॉट ए का ये, एंड पी बी कैसे मिलेगा? पी नॉट बी का बी। दोनों को हम ऐड करेंगे तो पी टोटल।
I hope you got this. Now this is the fourth numerical और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.36 है. 100 grams of liquid A, उसका मोलर मास दिया हुआ है, was dissolved in 1000 gram of liquid B. मतलब A और B का मास दिया हुआ है एंड B का मोलर मास भी दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल. VP of pure liquid B was found to be this much torr. P नॉट B दिया हमको बिकॉज प्योर लिक्विड B बोला है. कैलकुलेट द VP ऑफ प्योर लिक्विड A and its VP in the solution if the total pressure of solution is 475 torr. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको ढूंढना क्या है अंत में, VP ऑफ प्योर लिक्विड A मतलब P नॉट A ढूंढना है और दूसरा क्या ढूंढना है हमें P ऑफ A, क्योंकि मिक्सचर में A का फिर कितना होगा प्रेशर. क्लियर. नाउ वी स्टार्ट with the mole. Now let us zoom here and just see how we get to the answer. So moles of A, mass upon molar mass. 100 ग्राम दिया A का, उसका मोलर मास कितना है 140. So we have this much mole. वैसे मोल्स ऑफ B कितना आ गया 5.55 मोल. मोल आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस NB 0.114 A का मोल फ्रैक्शन आया. फिर B का कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 माइनस दिस 0.886. सो रिमेंबर वी हैव ऑब्टेन्ड हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम द मोल्स. ये फर्स्ट पार्ट था हमारा सॉल्यूशन का. नाउ जस्ट सी how we get to the answer with these values. So हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें P नॉट A मतलब प्योर A का प्रेशर फाइंड करना है और उसका पार्शियल प्रेशर. P मतलब पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर. नाउ वी आर गिवन P नॉट B 500 torr and total pressure of the solution 475 torr. Okay, so P is equal to P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का B. P नॉट A हमारे पूरी क्वेश्चन में, इसमें इक्वेशन में अननोन क्या है, अननोन है हमारा P नॉट A. का ये हमने यहाँ पे निकाल लिया. ओके, का B हमने निकाल लिया हुआ है, P नॉट B दिया हुआ है. सो वी गेट P नॉट A 280.7 बाय पुटिंग द वैल्यूज़. अब P A कैसे मिलेगा, P नॉट A का A. P नॉट A हमने यहाँ से ढूंढा और काई ए हमने यहाँ पे ढूंढा हुआ है. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो जस्ट हैव अ लुक वंस अगेन. हमारे पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, मोल्स ढूंढा A और B का, काई ए भी ढूंढ लिया फ्रॉम द मोल्स. काई B 1 माइनस काई ए करके आ गया. P नॉट A हमें ढूंढना है, P ऑफ A ढूंढना है, P नॉट B हमें दिया हुआ है, P दिया हुआ है. इक्वेशन हमारा यही आएगा. ओके, और उस पर सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ एंड विल गेट द आंसर फॉर P नॉट A. P नॉट A इतना आया. तो P कैसे मिलेगा, P नॉट A का ही हमने यहाँ ढूंढा हुआ है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ओके गाइस, सो नाउ दिस इज द फिफ्थ न्यूमेरिकल एंड दिस इज ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.38. Benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. हम यहाँ बेंजीन को A मानेंगे और टॉल्यूइन को B मानेंगे. Weber pressure of pure benzene and toluene at this temperature are this and this. मतलब P नॉट A और P नॉट B दिया हुआ है. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase. मतलब Y of A. वेपर फेज मतलब हमें y ऑफ A ढूंढना है क्योंकि हमने बेंजीन को A माना है. इफ़ दिस मच ग्राम मास दिया है तो हमें मोल्स मिल जाएगा इससे. दिस मच ग्राम बेंजीन इज मिक्सड विद दिस मच ग्राम्स ऑफ टॉल्यूइन. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ वी गेट टू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट मी जूम इन फॉर यू. लेट A be benzene and B be toluene.
A का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल एंड B का मोलर मास 92 ग्राम पर मोल. ओके, वी नो टॉल्यूइन इज मिथाइल बेंजीन. सो मोल ऑफ ए आ जाएगा क्योंकि हमें मास दिया हुआ है ए का मास दिया हुआ है 80 ग्राम्स अपॉन 78 1.026. वैसे हमें मोल्स ऑफ बी मिलेगा मास अपॉन मोलर मास 1.087. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिलेगा मोल से Na अपॉन Na प्लस Nb. सो आई गॉट 0.486. Okay, so here I got moles of A first, then moles of B, and then mole fraction of A. और 1 से माइनस करेंगे, so we get what? Mole fraction of B. Okay, so mole fraction of B is equal to 1 minus chi A. So 1 minus 0.486, we get 0.41514. Now हमें प्योर A और B का दिया हुआ है प्रेशर, दैट इज Vp. P0 A एंड P0 B इज गिवन. ओके, और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें ढूंढना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A. ना लुक हियर गाइस, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? लास्ट में देखो यहाँ पे y ऑफ A, हमने A को माना है बेंजीन, इस P अपॉन P टोटल, यू नो दिस थिंग. और P ये बताना क्या होता है? P0 A का ही है. ओके, एंड P कैसे ढूंढते हैं? PA प्लस PB से. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड PA एंड PB. तो PA कैसे मिलेगा? P0 A का ही है, हमें का ही है तो हमने ढूंढ लिया है, एंड P0 A दिया हुआ है, सो वी गॉट दिस मच mm 24.65. द सेम वे PB कैसे मिलेगा? P0 B का B. सो दिस इनटू दिस वी गेट दिस. ओके, एंड सो वी गेट द P टोटल, दैट इज समेशन ऑफ E एंड B. आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें ढूंढना है वाई ए के लिए PA चाहिए, और PA कैसे मिलेगा? P0 A का ही से. ओके, और P टोटल कैसे मिलेगा? उसके लिए PB भी चाहिए, तो PB हमने कैसे ढूंढा? P0 B का B. फिर दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया P टोटल, और PA अपन PB विल गिव द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज. सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. ओके, so very important question dear, let me simply revise this for you. हमने A और B का मोल ढूंढा, A को माना बेंजीन, B को टॉल्यूइन. सो हमें मोल फ्रैक्शन A आया, और 1 से माइनस किया तो B का मोल फ्रैक्शन. P0 A P0 B हमें दिया हुआ है, सो PA कैसे मिलेगा? P0 A का ही है. ओके, PB P0 B का B, और दोनों को ऐड करेंगे तो P टोटल मिलेगा, और हमें ढूंढना क्या है? YA, mole fraction of A in the vapor phase. So this is the answer, PA upon P total. Hello guys, so I hope you got the questions right. I tried my best to explain each and every numericals, okay, with the minute details in it. Please go through the videos again and again so that you can get the grip on the numericals. These are very important. Thank you for watching. I shall be coming back with some more important topics for chemistry guys. Till then, goodbye, and yes, please do like, share and subscribe my channel, Deepak Sir's Chemistry Zone. Thank you so much.